मेरी आवाज आ रही है सर? आप ये आपको आ क्लियर रही आ है, रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, तो मुनीर जी को जी, देख लें। आपकी भी क्लियर है सर। ओके, थैंक यू जी। वेल, today we are going to discuss about the violation of human rights in the context of Pakistan. Okay. Up to now, we have discussed variety of concepts related with human rights. More importantly, the concept, the introduction, different theoretical perspective, of course, different types and kinds of human rights. But one thing is very important: we should focus on that aspect of human rights. That rights are basically a practical, applied phenomena. Maybe rights may be explained, rights maybe have a theoretical background, but actually rights can be assessed in society, in a state. Now, having said that, the actual framework of human rights is primarily based on legal framework or institutions. Rights without legal framework are only claims. Okay. So rights has support and mechanism known as legal framework and legal courts. More importantly, the subject or the field of human rights is quite diverse. It's quite broad. It's have a broad spectrum. It's broad in the sense because rights are collection of immunities, rights of collection of behaviors. Of course, we have some fundamental rights like right to life, property, privacy, shelter. But more importantly, this theme of rights has a multiple, very broad spectrum. Now, as I said, primarily the theme right is related with legal framework or the role of justice institutions. And you know that we have different justice institutions like police, like courts, prosecution, legal fraternity, prison. Of course, we have legal code like CRPC, PPC. We have Constitution of Pakistan. But as I said, having said that, the actual law that explain and define human rights is international law. Locally speaking, as I said, we have different institutions, but the actual source that has a greater impact throughout world is known as international law. And do you know that there are different international bodies जिनका रोल बनता है कि वो हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स या ह्यूमनिटेरियन राइट्स के बारे में आगाही देती है। सबसे बड़ा जो इस वक्त इदारा है, अगर हम बात करें, दैट हैज अ मल्टी डायमेंशनल रोल, इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस। यूएनओ हैज a one important document known as UDHR, United Nations Charter of Human Rights. उसके अलावा भी यूएनओ की कुछ सब ब्रांचेस हैं जो ह्यूमन राइट्स को देखती हैं, लाइक WHO, यूनेस्को, लाइक यू हैव FAO, लाइक वी हैव यूनेस्को, ITC, ILO, UNDP, okay, UNODC. These all are institutions created, established to maintain international human rights. But as I said again, the rights are primarily local subject matter. Rights सबसे पहले एक local subject matter होते हैं, like it is a domestic connection. Pakistani rights of Pakistani,
राइट्स ऑफ अमेरिकन, बिकॉज हमारे जो राइट्स होते हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं हमारे आइन पर, हमारे लीगल कोड्स पे। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में नो डाउट हमारे पास एक सबसे बड़ा अहम सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट है, वो है हमारा आइन। आइन के अलावा अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखें, तो मजहबी पर्सपेक्टिव में भी हमारे पास एक बड़ी सेक्रेड डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहते हैं कुरान, द कमांड्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। के साथ साथ हमारे पास बाकी सोर्सेज भी हैं, लाइक सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि रिलीजन इज नॉट द सोर्स ऑफ गवर्नेंस, therefore religion can only have a private perspective. Constitution of a country may be very important and binding, but आइन का जो असर होता है वो एक मुल्क की हद तक होता है। अब इसको मैं इस तरीके से लूंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विथ रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान। इस पर्सपेक्टिव में, और मैं इसको ग्लोबली चेक करूं, तो आपको ये पता होगा कि जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो बेसिकली सेंस में लिया जाता है कि वो ममालिक या वो स्टेट्स या वो गवर्नमेंट्स जहाँ पे लोगों को, शहरियों को उनके बुनियादी हुकूक मुहैया नहीं किए जाए। It mean the violation they take place from a state, from a state point of view। ठीक है, हालांकि उसमें ऐसी वायलेशन भी आ जाती है जिसमें सब ग्रुप्स होते हैं, लाइक टेररिस्ट ग्रुप्स आर देयर, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स आर देयर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स दे डू कमिट क्राइम। लेकिन उनके जो क्राइम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके वायलेशन को हम क्या कहते हैं, क्राइम्स कहते हैं। ठीक है, इफ समवन इंडिविजुअली वायलेट द लॉ एंड कमिट अ क्राइम, इट मे बी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, बट इसको हम क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट क्राइम्स, ऑफेंसेस। लेकिन जब स्टेट फेल हो जाए, जब स्टेट फेल हो जाए राइट्स को इंटरप्रेट करने में, डिफाइन करने में, या उसको इन्फोर्स करने में, तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव बनता है। वो बनता है दैट स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, अब इसको मैं इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि इस वक्त भी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो जहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स के इशू होते हैं। मैं इसको जनरलाइज करूं, टॉर्चर और अब्यूज, टॉर्चर से मुराद जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस, वो इन्वॉल्व होते हैं टॉर्चर में और अब्यूज ऑफ पावर में। ओके, आई फ्रॉम योर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, सो दुनिया के इस वक्त 81 ऐसे ममालिक हैं जहाँ टॉर्चर और अब्यूज अब आज भी मौजूद है एज पार्ट ऑफ देयर प्रोसीजर। 81 country in the world, they use torture as part of confession or torture as part of admission। फिर there are about 54 countries in the world, 54 ममालिक हैं अभी भी दुनिया में से जहाँ फेयर ट्रायल नहीं होता, जहाँ ट्रायल फेयर फ्री नहीं होता। ठीक है, फिर उसके अलावा मैं और बात करूं, तो इस वक्त 77 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारा, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, एक्सप्रेशन, पब्लिकेशन, वो 77 ममालिक में वो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, पार्शल है, कम है या नहीं। ठीक है, तो हम जिस एरा में रह रहे हैं, जहाँ पे हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, जहाँ हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जहाँ पे हम फ्री, जहाँ पे हम ई ट्रेड की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना पे हम, हमारा जो सफर था वो कम होकर रह गया है। अब यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं, अब इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आज भी आपके पास मेजोरिटी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे फ्री ट्रायल नहीं होता, जहाँ पे टॉर्चर होता है एज पार्ट ऑफ द ट्रायल, एंड और वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं होता।
जो इंसान के जो ये तीनों एक फंडामेंटल राइट्स हैं। और आइन, पाकिस्तान आइन को दोबारा थोड़ा चेक करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड फ्री ट्रायल, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। आवाज मेरी आ रही है ठीक आपको? जी सर, बिल्कुल सही है। ओके। अब ये जो पूरा पर्सपेक्टिव ये हमें ये बता रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑकर्स व्हेन एनी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स breach any of the terms of UDHR or any local law or humanitarian law is known as human right violation. Human right violation occurs when any state or non-state actors breach, break, violates any of the terms of UDHR, that is United Nations Charter of Human Rights, or any other local domestic law or humanitarian law is known as human rights violation. इसके अलावा एक और डेफिनेशन देख लें। When individual or a group of individuals, when an individual or a group of individuals has been singled out and treated adversely or differently than others due to their group affiliation, color, race, gender, religion और sexual orientation, ये भी ह्यूमन राइट वायलेशन में आता है कि जब कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल उसको मेन स्ट्रीम से साइड लाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए, किस बुनियाद पे? उसके एफिलिएशन की बुनियाद पे, या तो जेंडर, या तो कलर, या तो लैंग्वेज, या तो मजहब, या तो फिर उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसे हम कहते हैं कि जो यूनिक होते हैं, अपने जो थर्ड जेंडर होते हैं, उनके राइट्स नहीं है। आजकल चले ठीक है, उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का राइट मिल चुका है, पासपोर्ट का भी राइट मिल चुका है, लेकिन हम जनरली बात करें तो जो थर्ड जेंडर है उनके पास ये राइट्स नहीं थे उससे पहले। ओके, तो इस तरीके से औरतों की बात करें तो मजहब ने औरतों को राइट दिया है विरासत का, सक्सेशन का, अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, लेकिन इन बाय प्रैक्टिस ये राइट उन पर बंद था। ये क्या था? ये भी वुमन राइट्स की वायलेशन है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राइट, ह्यूमन राइट वायलेशन और डिस्क्रिमिनेशन is basically when a group of person or individual has been singled out or isolated on the basis of their affiliation or common characteristics such as age, gender, age, gender, ethnicity, sect, religion and sexual orientation. Okay, तो इसको भी कहा क्या कहा जाता है? इसको भी ह्यूमन राइट वायलेशन और ह्यूमन राइट ब्रीच कहा जाता है। अब आ जाए एक और बड़े अहम पॉइंट पे कि जब हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी में कुछ ऐसे तबके होते हैं जो ज्यादातर जिनके राइट्स ब्रीच होते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी कुछ पहले लेक्चर्स में कि किसी भी मुल्क के ह्यूमन राइट्स का जो दारोमदार होता है, जो स्केल होता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ जो वल्नरेबल्स हैं, जो वीकर्स हैं, वो कितने सिक्योर हैं, वो कितने सेफ हैं, वो कितने डेवलप हैं। आप दुनिया के जिन ममालिक की भी स्टडी करेंगे, सिविलाइज ममालिक कह लें उनको, जहाँ कुछ सेक्शंस लाइक औरतें, बच्चे, डिसेबल, एल्डरली, माइनॉरिटीज, अगर ये सेक्शंस अगर सिक्योर हैं, डेवलप हैं, सेफ हैं, तो समझ जाएं कि वो सोसाइटीज वाकई डेवलप सोसाइटीज होती है। लेकिन जिन स्टेट में या ममालिक में ये सेक्शंस जिनमें माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, वुमन, एल्डरली, डिसेबल एंड रिफ्यूजीज, जो हिजरत करके आते हैं किसी बिना पे, लाइक हमारे पास जो रिफ्यूजीज हैं वो लाखों, 30-40 लाख रिफ्यूजीज पाकिस्तान में,
ठीक है। तो ये वो सेक्शंस हैं, अगर ये डेवलप हैं, अगर इनका राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, अगर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं की जा रही, तो समझ जाएं कि उस मालिक में ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड होगा वो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन जिन मालिक में ये सेक्शन डिप्राइव हैं, मार्जिनलाइज हैं, आइसोलेट हैं, लेस डेवलप हैं, इग्नोर हैं, निग्लेक्टेड हैं, तो वो सोसाइटीज को आप कह सकते हैं कि वहां पर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है। ठीक है। नाउ क्या फॉर्म्स हैं, अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस की बात करें या जनरली बात करें, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पर्सपेक्टिव से, उसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ दिस रेफरेंस, लेकिन द मेन डोमेन इज all third world countries like Pakistan, India, of course we have less developed nation in the world. तो उन सब का रिकॉर्ड जनरली एक जैसा ही होता है। उनका जिसका जो तराजू होता है जज करने का, वो होता है तो माइनॉरिटीज या जो वीकर जो सेक्शन है उनका डेवलप होना। अब इसमें जो चीजें मैंने अभी आपसे शेयर की, एक तो जो इंडिविजुअल्स क्राइम करते हैं उसमें टेररिज्म हो, टारगेट किलिंग हो, स्ट्रीट क्राइम्स हो, मे बी व्हाइट कलर क्राइम्स हो, उन क्राइम को हम क्राइम कहते हैं। indirectly those may be violation of human rights but generally known as crimes on offenses। लेकिन जब स्टेट अगर अपनी मिसयूज ऑफ पावर करे या अब्यूज ऑफ पावर करे या कोई भी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, स्टेट से मुराद गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, या फिर गवर्नमेंट के इदारे, या तो फिर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स जिनकी गवर्नमेंट से जिनको सपोर्ट हासिल हो, अगर वो क्राइम करें तो उन क्राइम्स को हम क्या कहते हैं, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो सबसे बड़ा मसला रहा है रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो कुछ बड़े टॉप मसाइल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें फोर्स डिसअपियरेंसेस की, जबरदस्ती जो लोग डिसअपियर किए जाते हैं। ठीक है। फोर्स डिसअपियरेंसेस, ऑफ कोर्स अनलॉफुल डिटेंशन होता है उनका, दे आर कन्फाइंड विदाउट देयर केस हियर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। फिर किडनैपिंग, मे बी हाई प्रोफाइल, मे बी लो प्रोफाइल किडनैपिंग। ठीक है। फिर टॉर्चर as part of investigation or as part of their trial system, torture. Then slavery, forced slavery, like labor, okay, or any form of sexual, physical, or mental exploitation. That's known as labor or slavery. Then racial discrimination, वो डिस्क्रिमिनेशन जो किसी के रेस की बुनियाद पर हो। अमेरिका में जैसे देखें ब्लैक्स और व्हाइट का जो भी राइट्स हुए, तो ये भी बेसिकली उसी पैरामीटर पर ये हुआ है कि वो जो जो रेस बेस्ड जो पॉलिसी अमेरिका की थ्रू आउट एजेस रही है। ओके। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। फिर रेप। ओके। रेप हालांकि एक आम क्राइम भी है, लेकिन जैसे बात करें कश्मीर की, बात करें आप ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, वहां पे जो सेकंड हाईएस्ट क्राइम हो रहा है वहां पे टारगेट किलिंग के अलावा, सेकंड और थर्ड, वो है दैट इज द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कश्मीरी वुमेन। अमेरिकन फोर्सेस, सॉरी इंडियन फोर्सेस, particularly Indian army, they have been charged and they have been found involved in forced sexual exploitation of Kashmiri women. इसमें rape, sexual assault, sexual organ mutilation, okay, and of course different forms of sexual behaviors हैं, वो उसमें forced pregnancy भी है, इसमें forced child abort करना भी है, ये सारे वो sexual violence में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये स्टेट की पॉलिसी आप देखें यहाँ पे कि इंडिया का जो कंट्रोल है कश्मीर में, लाइक इंडिया इज लाइक स्टेट रूलिंग द स्टेट पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहां पे उनकी जो स्टेट की पॉलिसी है, जो उनकी स्टेट की पॉलिसी है टुवर्ड्स द सिटीजन, उसमें क्या है, उसमें डिसअपियरेंस भी है, जबरदस्ती गुमशुदा करना, उसमें किडनैपिंग भी है, उसमें टॉर्चर भी है, उसमें रेप भी है, दैट इज सेक्सुअल वायलेंस। ओके। तो रेप कैन आल्सो बी वन ऑफ द gross violation of human rights in context of third world countries from the state perspective. Are you getting? Yes, sir, getting. Okay. इसके अलावा जिनोसाइड,
शायद आपने सुना हो, टर्म सुना हो, जिनोसाइड। कुछ अगर आपको कुछ पता हो थोड़ा शेयर करें। जिनोसाइड किसे कहते हैं? Sir, genocide is a mass killing, systematic mass killing done by the state. Recently हमने म्यांमार में देखा था। उसके बाद चाइना में जो यूएस मुस्लिम थे, जी जो मुस्लिम के नाम पे, मुस्लिम एजुकेशन के नाम पे, री एजुकेशन के नाम पे हो रही थी। इस तरह पास पास में रवांडा जेनोसाइड हुई थी 1992 में। तो ये जी हाँ। सिस्टमेटिक मास किलिंग जिसमें किसी मिनोरिटी को टारगेट किया जाता है। जी genocide is basically a hate crime sometime it is a crime against state. genocide में क्या होता है? when state or state actors or non-actors, they are found in systematic cleansing, systematic eradication, or systematic target killing of a group of people on the basis of their common characteristics. Okay, so genocide में क्या इन्वॉल्व होता है? सिस्टमेटिक किलिंग, प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की बर्थ को प्रिवेंट करना, उनके उनके जवानों को अरेस्ट करना, डिसअपियर करना, औरतों को तशद्दुद करना, रेप करना। ओके, इट मीन प्रिवेंशन ऑफ बर्थ और बर्थ रेट, force kidnapping their children, forcing them to migrate, target killing them, and assaulting or injuring them. Okay, तो किसी इसमें से कोई भी अगर सिम्टम हो या कोई भी साइन हो तो समझ जाएं कि इफ इट इज सिस्टमेटिक, if it is based on some common characteristics like religion, like affiliation, like ideology, like race, like ethnicity, like culture, like philosophy, okay, तो उसको कहते हैं जिनोसाइड, नस्लकुशी। ठीक है। अब ये जो अभी मैंने आपको जो पैटर्न्स बताए उसमें जबरदस्ती डिसअपियर कर लेना, किडनैपिंग, टॉर्चर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेप और सेक्सुअल वायलेंस और जिनोसाइड, ये सारे के सारे दुनिया में सबसे ग्रेव सीरियस कंसर्न है रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। और ये सारे के सारे बेसिकली होते हैं फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। इट मीन मोस्ट ऑफ टाइम स्टेट्स हैज बीन फाउंड टू इन्वॉल्व इन दीज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कश्मीर की बात की आपने, आप फलस्तीन की बात कर लें, आप वो अपनी जो डिफरेंट जो जितने भी जो डिस्प्यूट रहे वो रवांडा की बात करें, जितने भी डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी रही है उसमें ये सारे के सारे यार में से कुछ फॉर्म्स आपको नजर आएंगे। फिर अगर आप उन ममालिक की बात करें जहाँ पर डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पे बजाय रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे सोवरेनिटी स्टेट की है, जहाँ पे आपका स्टेट के इदारे काम कर रहे हैं, जहाँ कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन उन ममालिक में भी आपको इनमें से कुछ ना कुछ फॉर्म्स और फ्लेवर्स नजर आ जाएंगे। पर्टिकुलरली जो टॉपर हैं वो टॉर्चर, अगर आप हमारे सीजे सिस्टम को देखें, पुलिस को देखें, police has always been found involved in using torturous method and means to extract confession from criminals. क्यों? सॉरी। ओके, तो वो ट्रायल ही नहीं होगा जिसमें फोर्स कन्फेशन या इसमें टॉर्चर या थर्ड डिग्री का मेथड अप्लाई नहीं होगा। कॉर्पोरल मेथड मस्ट बी देयर। ओके, अब जितने भी इंटरोगेशन देख लें यहाँ पे, अब सब में एक हद तक टॉर्चर का एलिमेंट होता ही होता है, which is unlawful, unconstitutional, which is violation of human rights. ओके, इसके अलावा अब बात करें डिसअपियरेंस की बात करें तो हमारे पास एक आइन का राइट है फंडामेंटल कि किसी को भी बगैर किसी इल्जाम के या गवाह के या एविडेंस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट अगर होती भी है, द अक्यूज मस्ट बी ब्रॉट फॉर द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड ही कैन ओनली बी टेकन कन्फाइंड व्हेन ही हैज टू बी गिवन रिमांड और दैट कोर्ट डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान में बात करें आप, सालों साल से 9/11 के बाद, उससे पहले भी 9 के बाद भी एक मैसिव स्केल पे लोग ऐसे जो डिसअपीयर हुए, उसमें नो डाउट ऐसे भी हैं काफी जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके माइंड सेट के हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बात करें एक लीगल फ्रेमवर्क की,
तो प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कोई शक नहीं इसमें कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी हद तक कामयाबी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है, टेरर फाइनेंसिंग को रोका है, उनके जो नेटवर्क है उनको डिसमेंटल किया है। ओके। और एक एक जो एक बड़ा राइज था दहशतगर्दी का, तो 2 डिकेड चला, उसको हमने कंट्रोल किया है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्रिटिकली बात कर रहे हैं, एनालिटिकली बात कर रहे हैं और लीगली बात करें, तो जो लीगल पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक किसी को भी बगैर किसी इल्जाम के, ट्रायल के, प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर अगर आप डिटेन करेंगे, डिसअपियर करेंगे, तो दैट इज नॉट ओनली द वायलेशन ऑफ योर डोमेस्टिक लॉ, but it is also the grave violation of international law as well। ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिसमें हम, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये जो प्ली हमें मिलती है फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, ठीक है, कि हमारी कोर्ट्स में कैपेसिटी नहीं है, हमारे पुलिस में कैपेसिटी नहीं है, वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, हमारे कोर्ट्स बर्डन है पहले ही और बर्डन है, हमारे पास लॉज बड़े आउटडेटेड हैं, हमारे पास जो दहशतगर्द जो क्रिमिनल्स हैं वो बड़े ढीठ स्टबर्न और बड़े बड़े ऑर्गेनाइज हैं। ठीक है। हमारे पास अवाम है, उनको उनकी समझ कम है, तालीम याफ्ता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे गवाही लेना, इन्वेस्टिगेट करना, फिर प्रोसिक्यूट करना, फिर सबसे बड़ी बात सजा देना, वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आपके सिविल कोर्ट्स में, सिविल समाज जो आपके सिविल सिविल जजेस हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल या एक पॉलिटिकल क्रिमिनल या एक माफिया के खिलाफ कोई वर्डिक्ट या जजमेंट पास करें। तो उसके बदले में फिर क्या हमने नतीजा हमने अखज किया, वो ये किया कि हम ऐसे दहशतगर्दों को रेकी करके उनको पकड़ के हम डिसअपियर कर लेते हैं, उनको फिर वो फिर कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं होते, फिर कोर्ट में पेश हो तो फिर वो बच जाए, बेल मिल जाए। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहा है। इसमें सबसे जो नेगेटिव पार्ट वो ये रहा है कि उसमें काफी ऐसे इनोसेंट हैं जो निशाना बन जाते हैं। आप 9/11 की बात करें, टेल यू ऑल द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, के 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे थे जिनको अमेरिका के हवाले कर लिया गया था। ठीक है। ऑफ कोर्स they were all have the accusation of they were involved in, they are supporters of Taliban, Al Qaeda and all that। और फिर उनमें से मेजॉरिटी ऐसी थी जो फिर वो गांतानामो बे में जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन था वहां पर रहे, पता नहीं कितने 100 वहां पर रहे। वो यकीन करें मेजॉरिटी ऐसी थी those who actually found non guilty, उनमें से बड़ा नंबर था जो वापस उनको छोड़ा गया, they traveled back to the country from Afghanistan, from America, from your local sales। ठीक है। तो उसमें पॉइंट ये था कि अगर आपके पास एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म होता जिसमें आप उनको ट्राई करते, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते, देन उसपे जो इनोसेंट होते उनको विक्टिमाइजेशन होने का चांस कम से कम होता। लेकिन हमने उनमें से काफी इनोसेंट थे। आप आपका सिद्दीकी की बात करें, सबसे बड़ी एग्जांपल, a lady, a qualified doctor, she was transferred, abducted, and of course she was transferred to American, okay, and then she was sent to like uh, like back to America, and where she was given about 80 years or more than 80 years life imprisonment, okay, where she was abused physically, she was exploited, okay। तो इससे पता नहीं कितने ऐसे केस हुए जिनमें जो विक्टिम इज आइदर लेडी, वुमन, अंडर एज, जुवेनाइल, समटाइम, or have brainwashed, indoctrinated youngster, ठीक है। आज हमारे पास अगर बात करें, आज हमारे पास वही सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, एक ओपिनियन बन चुका है कि हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे जो बिगड़े हुए लोग हैं, ओके, उनको मेन स्ट्रीम पे हम लेके आ जाए थ्रू रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, थ्रू रिफॉर्मेशन प्रोसेस, थ्रू देयर, उनको मेन स्ट्रीम में हम लेके आ जाएं थ्रू देयर डेवलपमेंट, एजुकेशन। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे वो वाकई वो मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहे हैं और उनकी जो डेप्रिवेशन है वो कम से कम हो रही है। ठीक है। तो आप देखें ड्रोन अटैक्स की आप बात करें, एक 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 इनडिस्क्रिमिनेट ड्रोन अटैक्स आपके ट्राइबल एरियाज में देख लें, वहां पे घरों घर तबाह, वहां पे बच्चे, लेडीज, एल्डरली, सब टारगेट। तो वहां से जो लोग निकलते थे वो नेचुरली हॉस्टाइल होते थे टुवर्ड्स स्टेट, टुवर्ड्स द स्टेट फोर्सेस। ठीक है। तो ये सब कुछ आपके राइट्स के कंटेक्स्ट में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस एज वेल। ठीक है। उस तरीके से अब मैंने टॉर्चर की मैंने बात की।
तो आपके पास जितने भी हमारे पास ट्रायल होते हैं, पर्टिकुलरली जो पुलिस ट्रायल की बात कर रहा हूँ, उसमें मेजोरिटी ऑफ ट्रायल में यूज ऑफ थर्ड डिग्री और टॉर्चर यूज होता है। और आपके अगर आप आइन को पढ़ें या इवन अगर आप यूएनओ के यूडीएचआर को पढ़ें, जब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि नो सॉर्ट ऑफ टॉर्चरस थर्ड डिग्री मेथड विल बी अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड ऑफ क्राइम इवन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सबसे बड़ा एक वायलेशन है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बाकी जेनोसाइड, ऑफ कोर्स अभी बात हुई, जैसे इंडिया में बात करें कि जेनोसाइड ये सबसे बड़ी जो मुल्क इन्वॉल्व है वो इंडिया है, सेक्सुअल वायलेंस में, रेप में। ठीक है, अब ये ऐसे कुछ इश्यूज थे जिनको जनरली हम कहते हैं स्टेट की तरफ से वायलेशन हो रही है। लेकिन मैं आपको एक कुछ बड़ी चीज हम चीज बताऊं कि वायलेशन इज नॉट एवरी टाइम फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। समटाइम स्टेट इज एक्टिवली a participant, sometimes state policy result in violation of human rights। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको मिसालें दी, फोर्स डिसअपियरेंसेस, मिसिंग पर्सन केसेस, किडनैपिंग, टॉर्चर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेप, जिनोसाइड, ये वो क्राइम्स हैं या वायलेशन है जो जनरली स्टेट डेलिबरेटली इन्वॉल्व होती है इसमें। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं हमारे पास दुनिया पूरी में, वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में पर्टिकुलरली, जो स्टेट ने डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन स्टेट की जो गवर्नेंस होती है, पॉलिसी होती है, उसमें मसाइल की बुनियाद पे ज्यादा स्टेट इन मसाइल का शिकार होती है। उनमें क्या है? फोर्स मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस, फोर्स कन्वर्जन्स फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर रिलीजन, एसिड अटैक्स, ऑनर किलिंग, चाइल्ड लेबर। अब ये ऐसे कुछ सोशल इश्यूज हैं जिनको सोशल इश्यूज कहते हैं, जिनको हम क्राइम समझते नहीं है। इफ द वुमन और द गर्ल्स आर मैरिड by use of force in early ages or without their consent, we take it as a social issue, not a criminal issue. If we see in any case like forced conversion, we always take it a non-criminal issue. If we see in any of the interpersonal issues like women rights are been violated, they have not given right of inheritance, property, succession, or even honor crime, तो हम उसको interpersonal issue समझते हैं, स्टेट की तरफ से उसमें कुछ नहीं समझते। लेकिन दिस इज अगेन द प्रॉब्लम लाइज हियर। इसकी बुनियाद पे क्या होता है कि स्टेट की एक पर्टिकुलर पॉलिसी होती है टुवर्ड्स विक्टिम एंड टुवर्ड्स द क्रिमिनल्स। व्हेन द मैटर कम्स ऑफ serious interest like any blue collar crime, any murder, or any crime like rape or even street crime, the state will take level based to control the crime. But when state heard about these problems which I just shared, the state have a reluctancy, and state is not ready to bring reforms. Okay, तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है कि आपके पास जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज में, वो डिप्राइव फील करते हैं, आइसोलेशन का शिकार, मार्जिनलाइज फील करते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो, अगर हम औरतों की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें, तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो हमारे रिमोट एरियाज में या हमारे रूरल एरियाज में रहा है। वो फोर्स मैरिजेस कर रहा है या अर्ली मैरिज कर रहा है कि औरतों को, बच्चियों को बड़ी कम एज में शादी की जाती है जबरदस्ती, उनकी चॉइस के बगैर या कम उम्र में, जहाँ वो बायोलॉजिकली और सोशली भी तैयार नहीं होती उस ताल्लुक के लिए। ओके, फिर उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस इज कनेक्टेड, बिकॉज वो ही कम उम्र, कम पढ़ी लिखी, जबरदस्ती के रिश्ते में आने वाली जो बच्ची होती है, वो ज्यादातर फिर मेडिकल, नॉन मेडिकल इशूज को फेस करती है, और फिर वही फिर औरत फिर डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना भी बनती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास, हालांकि अर्बन एरियाज में भी औरतें शिकार होती हैं, लेकिन वो एक आइसोलेशन में वाक़ होते हैं। इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मर्द हजरात भी होते हैं, उसी तरीके से उसी का शिकार औरतें भी होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस की, और सिस्टमेटिक